Okay, so everyone, today we are starting with a completely new chapter, which is cell cycle and cell division. Yesterday, the biomolecules got completed. Has anyone doubts in the biomolecules? Yeah, everything is clear. Everything is clear to each and everyone. कोई नहीं, ask me at the end of the class when this gets over. ठीक है? So पहले हाँ बोलो. ओके 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 नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो जिसको भी डाउट्स है यू कैन आस्क मी एट द एंड ऑफ द क्लास. ठीक है, सो पहले वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर टुडे विच इज द सेल साइकिल एंड सेल डिविजन. ठीक है, सो व्हाट इज cell cycle and what is cell division? You know we have millions of cells in our body. ठीक है, so अगर millions of cells हमारे body में present हैं, so there must be some mechanism which should be present जिसके through cells continuously synthesize होते जा रहे हैं, and cells अगर continuously synthesize हो रहे हैं तो there must be some mechanism also जो कि उनका डैमेज भी हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली वन पर्टिकुलर सेल कैन नॉट सर्वाइव फॉर द एंटायर लाइफ टाइम. सो देयर माइट बी सम डैमेज टू द सेल, एंड सेल को डैमेज हो रहा है तो उसको रिप्लेस करने के लिए देयर हैज टू बी अ न्यू सेल. ठीक है, so what is this entire process? This is actually completely the cell cycle and the cell division. मतलब the cell cycle means कि how is a cell being synthesized, what it does it do during its entire lifetime, and how are the cells basically dividing. So all of those answers, they are present in this particular chapter. ठीक है, so what is happening? See, what's firstly we'll define cell cycle. What is cell cycle? Cell cycle is a genetically controlled series of changes that occur in a newly formed cell by which it duplicates its genome. ठीक है, पहले यहाँ तक समझते हैं cell cycle. What is cell cycle? It is a genetically controlled series of changes. Obviously, it is different for each and every individual, and it is completely related. No one is doing anything from the outside. These are basically the genes, ठीक है, which are regulating all of this. Because you know, सेल के अंदर बेसिकली व्हाट डू वी कॉल द ब्रेन ऑफ द सेल. ब्रेन ऑफ द सेल हम किसे बोलते हैं? वी कॉल इट द न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं? बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर देर आर क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दोज क्रोमोसोम्स व्हाट हैपेंस कि वो द सेल्स दे एक्चुअली कीप ऑन डिवाइडिंग. सो इट इज अ जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज ऑफ चेंजेस which occur in a newly formed cell and by which it duplicates its genome. The genome को duplication के we call it as the replication. I've already told you, मैंने आपको बताया था बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में. I told you three terms. They were replication, transcription, and translation. Replication is uh, creating a replica of our own genome, which is synthesis of DNA from DNA. And when the DNA actually gets synthesized, we have to synthesize the RNA from that DNA. So that is actually transcription. And our eventual aim is to synthesize a particular protein, which is the translation process. Okay. So we have studied all of that in the biomolecules chapter. So when जब cell duplicate हो जाता है, so it undergoes growth and it divides to form two daughter cells. So when one particular cell, suppose ये कोई particular cell है, if it is going to divide, and when it actually divides after the complete cell cycle, it will form two daughter cells. ठीक है? So this is what the cell cycle actually says. Now जो सेल साइकिल होती है इट इज एक्चुअली कंप्लीटेड इन टू स्टेप्स. जितनी भी सेल साइकिल है जो भी है. अच्छा, इफ यू टॉक अबाउट आर ह्यूमन सेल्स दैट डिवाइड ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली every 24 hours there's a division in our body of the cells which keeps on going on. ठीक है, now the cell cycle actually is completed in two particular steps. First is the interphase and the second is the M phase. Do not get confused between these two. First is the interphase and second is the M phase. What is interphase? Interphase is actually the preparative phase
the cell actually doesn't divide in interphase. Cell कभी भी interphase में divide नहीं करता है, but it always rather prepares itself for the division. बात समझ में आ रही है? So the interphase is the phase when the cell is preparing itself for the division but never dividing. Okay. So it is a preparative phase, and it has three subphases. What are those three subphases? There is this G1, S, and G2 phase. G1 stands for gap 1, and then there is S phase, and then there is G2 phase, which is the gap 2 phase. So what did Bolo? Okay. So interphase is the preparative phase, and it has three subphases: gap 1 phase, S phase, and gap 2 phase. ठीक है? Now, if we talk about the M phase में क्या है? M phase is also known as the division phase. जैसे मैंने अभी बोला, interphase में cell never divides, but rather it always actually prepares itself to divide. ठीक है? So prepare इस interphase में कर रहा है, and जब cell completely prepare हो चुका है divide करने के लिए, it actually divides in this M phase. ठीक है? So therefore this M phase is also known as the division phase. Now this M phase has two subphases. What are those two subphases? One is karyokinesis and the other is cytokinesis. Karyo word stands for nucleus. ठीक है? So karyo means, so you can understand from it कि इसमें जो division हो रहा है, that is taking place in the nucleus, or you can say the nuclei, they are actually dividing. And cytokinesis, cyto means the cytoplasm. So in this particular phase, cytoplasm is actually undergoing division. Okay? So M phase is completed in two steps: karyokinesis and the cytokinesis. Now this karyokinesis is further divided into four phases. What are those phases? Prophase, metaphase, anaphase, and the telophase. So when this cell actually undergoes karyokinesis, matlab ki it has completed all these four stages, which are prophase, metaphase, anaphase, and telophase, then the phase which comes up is the cytokinesis. मतलब न्यूक्लियस completely divide कर चुका है, अब साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है to form the two daughter cells. ठीक है? So cell cycle will be completed in two steps. One is the interphase and the second one is the M phase. So the interphase is the preparative phase, जिसमें cell सिर्फ खुद को prepare कर रहा है to divide, and it has three subphases: gap 1 phase, S phase, and the gap 2 phase. ठीक है? We'll talk about all these three phases, what happens in all these three phases. M phase में क्या होगा? It is actually the division phase, जहाँ पे actual में cell divide कर रहा है. So it has two steps: karyokinesis and cytokinesis, and karyokinesis further divided into prophase, metaphase, anaphase, and telophase. I'm assuming you all must be familiar with all these stages. And the next is cytokinesis. Okay. Now, how a cell actually looks like when it is actually dividing, or when it is actually undergoing the cell cycle. So, see, this is how it actually looks like. सबसे पहले this is the G1 phase, S phase, G2 phase. ठीक है? अच्छा, जो सेल जब भी डिवाइड करता है, जो एम फेज होता है, इट इज हार्डली कंप्लीटेड इन 1 hour और 2 hour. बाकी का जितना भी टाइम लगता है, इट इज द सेल इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द इंटरफेस. अगर हम ये सोचते हैं कि सेल को डिवाइड करना है, इसीलिए it would take the most time in the M phase, but this is actually not true. M phase के लिए the cell only takes hardly 1 hour or 2 hour. I guess it's only 1 hour only. And बाकी का सारा time the cell is present in the interphase. ठीक है? So सबसे पहले this is the G1 phase, then there is this S phase, then there is G2 phase, and this G1 से लेके complete G2 तक, this is the interphase, because I've written here that the interphase has three subphases: G1, S, and G2 phase. ठीक है? So this green line is completely the interphase. ठीक है? अच्छा, now M phase में I've written two stages, which are the karyokinesis and the cytokinesis. This is the prophase, metaphase, anaphase, telophase, and then the cytokinesis. ठीक है? अच्छा, just now I said कि जब एक सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है, सपोज कभी भी हम जनरली एज एन एग्जाम्पल अगर किसी इंडिविजुअल को कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर हिम एज अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल. ठीक है? सपोज दिस इज द डिप्लॉयड इंडिविजुअल, सो वी हैव अ 2n सेल. ठीक है?
So when the cell cycle actually gets completed, what will happen? At the end of the cell cycle, we will get two daughter cells, and those two daughter cells will be, obviously they will also be diploid. They will not be haploid. So the chromosome number is actually maintained. Okay. So this is an overview of the cell cycle, how it actually goes, and we'll start with the individual phases of the cell cycle. So firstly, we'll start with the interphase, and interphase में the first phase is actually the G1 phase or the gap 1 phase. Interphase में भी जो gap G1 phase होता है, it is actually the longest phase. It lasts around 11 hours. ठीक है, 11 hours तक ये last करता है. सो जीवन फेज में एक्चुअली क्या क्या होता है? जीवन फेज में सबसे पहले तो प्रोटीन सिंथेसिस इट एक्चुअली इंक्रीजेस. एंड प्रोटीन सिंथेसिस किस चीज का इंक्रीज हो रहा है? फॉर द एंजाइम्स. एंड एंजाइम्स कौन से चाहिए? विच आर रिक्वायर्ड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन. बिकॉज जो भी डीएनए रेप्लिकेट करता है, कीप दिस थिंग इन माइंड, डीएनए ऑलवेज एंड ऑलवेज रेप्लिकेट्स इन द एस फेज. डीएनए जब सिंथेसाइज होता है, मतलब व्हेन इट एक्चुअली क्रिएट्स कॉपीज ऑफ इट्स ओन, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द एस फेज. ओके, सो अब एस फेज में तो उसको डिवाइड करना है, सो इट हैज टू प्रिपेयर इटसेल्फ इन द प्री फेज. ठीक है, पहले इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो उसके लिए व्हाट इज द जीवन फेज डूइंग? इट इज एक्चुअली सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन्स. एंड व्हाट आर दोस प्रोटीन्स? They are basically the enzymes which are required for the DNA replication. ठीक है, next step is RNA synthesis also increases. Then ATP synthesis also takes place, because जो भी DNA replication है and all these RNA synthesis process, they all are energy consuming processes, and for that energy obviously we require ATP. So ATP synthesis is also taking place in this particular phase, which is the G1 phase. ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा? The raw materials which are required for S phase are also synthesized. मतलब अब S phase में जो भी particular जो भी प्रोसेसेस होने हैं, तो जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए वो भी सब जीवन फेज में सिंथेसाइज हो जाएंगे, सो दैट when the cell actually enters the S phase, the cell doesn't has to wait for anything and it keeps on मतलब continue अपना growth का process it can continue. ठीक है, and the last is the cell size is increasing but डिवाइड नहीं कर रहे. बात समझ रहे हो? सपोज अगर सेल पहले इतना है तो सेल का साइज इतना हो जाएगा, बट देर वोंट बी एनी डिविजन इन द सेल. ठीक है, देर इज ओनली इंक्रीज इन द साइज. ठीक है, सो सेल साइज इज इंक्रीजिंग और द सेल ग्रोथ इज एक्चुअली taking place. ठीक है, so this one is the G1 phase, and then we'll move on to the S phase. If you have any doubt, you can ask me. Otherwise, we'll move on to the S phase. बच्चे, हर चीज का एक फेज डिसाइडेड है. सी, पहले जो डीएनए रेप्लिकेशन है, अगर वो G1 फेज में ही डीएनए रेप्लिकेशन होने लगा तो सेल कैन नॉट एक्चुअली डिवाइड. फर्स्टली सबसे पहले तो उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को. सीधा तो डिविजन नहीं कर सकता है ना, इसको एंजाइम्स चाहिए या और भी सारे जो सबस्ट्रेट्स हैं वो चाहिए. एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड. एंड अगर जीवन फेज में रेप्लिकेशन होने लगा, सो दैट मीन्स कि जीवन फेज से पहले कोई फेज प्रेजेंट है जिसमें जो फेज उसको सेल को वो सभी रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा है, बट जीवन फेज से तो पहले कोई फेज नहीं है. देयर इज डायरेक्टली एम फेज, एंड एम फेज में तो एक्चुअली में डिविजन हो रहा है. So the replication cannot take place in G1 phase. It has to take place in S phase. S phase में क्यों होगा? Because वो G1 phase already उसको prepare कर लेगा. जो भी S phase में replication के लिए materials required है या जो भी substrates required है, they will be made available in the G1 phase, so that when the cell, as soon as it enters in the S phase, it completely and instantaneously starts dividing. समझ में आया? Because G1 phase में नहीं हो सकता है. हाँ बोलो. बच्चे, कंट्रोल सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. आपके बुक में इनको मेंशन नहीं है, जस्ट आई एम टेलिंग यू. सेल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए देयर आर सर्टेन चेक पॉइंट्स व्हिच आर प्रेजेंट. फॉर एग्जांपल, देयर आर सीडीके काइनेजेस. ठीक है, सीडीके काइनेजेस होते हैं. देयर आर सर्टेन चेक पॉइंट्स व्हिच आर प्रेजेंट. एक सबसे पहला चेक पॉइंट होता है बिटवीन G1 टू S फेज. ठीक है, G1 टू S फेज में क्या होगा कि अगर सपोज वो चेक पॉइंट ये देखेगा कि मतलब ऑब्वियसली जो S फेज के लिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं,
if they are not properly synthesized, the cell cycle will actually halt over here. But अगर चलो यहाँ पे नहीं भी होता, the cell will eventually move to the S phase. But जो second check point होगा, it will be present between S and the G2 phase. अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है विच इज द एस फेज, बिकॉज एस फेज में रेप्लिकेशन हो रहा है, मतलब कि हमारा जो जीनोम है दैट इज गेटिंग डुप्लीकेटेड, एंड समहाउ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है डुप्लीकेशन में या रेप्लिकेशन के प्रोसेस के टाइम पे एनी प्रॉब्लम हैपेंस, देन दैट प्रॉब्लम विल बी पास्ड ऑन टू द डिवाइडिंग सेल्स, बिकॉज द सेल्स दे वोंट बी एक्चुअली एबल टू डिवाइड प्रॉपर्ली. सो यहाँ पे मोस्टली 1 in million केसेस ऐसा होता है कि जो चेक पॉइंट है वो रेगुलेट ना कर पाए. अदरवाइज अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, दीज चेक पॉइंट, डी सी डी के स्टैंड फॉर द सेल डिपेंडेंट काइनेजेस. तो ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, जो सेल की ग्रोथ को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं कि सो दैट देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम इन द सेल साइकिल. आप लोगों को चेक पॉइंट्स वगैरह और नहीं करने, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द सेल साइकिल. आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में इट हैजंट बीन गिवन. Okay, any other doubt? कैंसर में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं ना, वो उनकी सेल साइकिल वाली जो ग्रोथ को रेगुलेट करने वाली प्रॉपर्टी होती है, इट एक्चुअली गेट्स वैनिश. ठीक है, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे तो हमारे पास चेक पॉइंट प्रेजेंट है जो सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करे, बट वहां पे क्या हो जाती है, सेल की जो ग्रोथ होती है वो अनकंट्रोल्ड मैनर में हो जाती है. ठीक है, तो जो वो अनकंट्रोल मैनर में होने लग जाती है, मतलब आप समझ सकते हो कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेल्स, सपोज मेरे को 100 सेल्स रिक्वायर्ड है, तो सेल्स बन रहे हैं 1 लाख, विच इज मच मोर रिक्वायर्ड देन द, जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे बहुत ज्यादा है. तो जब रिक्वायर्ड अमाउंट से सेल्स ज्यादा सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो दे विल स्टार्ट स्प्रेडिंग इन द एंटायर बॉडी, एंड दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज जो सेल ग्रोथ का मैकेनिज्म है दैट इज एक्चुअली गेटिंग हैम्पर्ड. तो कैंसर में क्या होता है, जो सेल्स हैं वो अपना ग्रोथ का जो मैकेनिज्म है वो लूज कर चुके होते हैं. ठीक है, तो वो मैकेनिज्म लूज करने की वजह से द सेल्स कीप ऑन कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग, एंड सेल के पास ये चेक पॉइंट्स मतलब नहीं बचते हैं जो कि सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करें. ठीक है, इसीलिए दीज सेल्स कीप ऑन मल्टीप्लाइंग एंड स्प्रेड टू द एंटायर बॉडी पार्ट, एंड वहां पे जाके दे क्रिएट द ट्यूमर. ठीक है, चेक पॉइंट्स खराब हो जाते हैं एंड सेल का बेसिकली आप बोल सकते हो ये हाँ चेक पॉइंट्स ही हैं जो ग्रोथ मैकेनिज्म को, सेल साइकिल मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं. तो बट उनमें प्रॉब्लम आ जाती है कैंसर में. दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द फैक्टर्स. बाकी की भी देयर आर मेनी सेवरल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग कैंसर. दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स. ठीक है, कैंसर आपके आएगा 12th क्लास में. बट दिस चेक पॉइंट्स जो खराब होते हैं, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स. देर आर मेनी अदर सेवरल फैक्टर्स ऑल्सो, जिसकी वजह से द सेल साइकिल एक्चुअली गेट्स अफेक्टेड एंड द सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग अनकंट्रोलेबली. Any other doubt? Anyone? Clear? Taking the picture? Can I rub it? After G1 phase, the next phase is actually the S phase. So what is happening in S phase? अभी मैंने बताया व्हाट इज द मेन पर्पस इन एस फेज. एस फेज में सेल को क्या करना है, एक्चुअली सेल को डिवाइड कर. एग्जैक्टली जो मेन फंक्शन है एस फेज का दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, दैट द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल. अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल. ठीक है, सिंपल सा मतलब इसका क्या है कि अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल विल डबल. और क्या होगा, सेंट्रियोल डिवाइड्स. सेंट्रियोल्स हमने कहां पे करे थे, वेयर डिड वी स्टडी द सेंट्रियोल्स? पढ़े कहीं पे सेंट्रियोल या नहीं पढ़े हैं?
कहाँ पे? कहाँ पे करें? अभी तक कुछ करे? सुना है नाम? न्यूक्लियस। अच्छा, क्या करते हैं सेंट्रियोल्स? कहाँ पे पढ़े थे? क्या बोल रहे हो? एनिमल किंगडम में सेंट्रियोल्स पढ़े थे। वेरी गुड। जिया कहाँ पे? हाँ बताओ क्या करते हैं? नहीं नहीं, तुम लगा रहे हो जो अंदाजा, जस्ट टेल मी क्या करते हैं एनिमल किंगडम में सेंट्रियोल्स? बोलो बोलो। जिया, जिया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दी सेंट्रियोल्स? नहीं अभी नहीं, जब पूछूंगी तब बोलना। जिया। नहीं याद है? यू गाइस डू नॉट स्टडी ना, पढ़ते नहीं हो ना? सीरिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बताया था, 9+2 अरेंजमेंट कुछ बताया था, याद है? 9+2 अरेंजमेंट। साइटोकाइनेसिस की बस 9+2 अरेंजमेंट कब होने लगे भाई? हाँ तो साइटोकाइनेसिस में सेंट्रियोल्स क्या करेंगे? मुदित, 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 मुदित। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंट्रियोल्स? कहाँ पे पढ़ा था, बता सको तो? अभी तो यू वर सेइंग, कैन आई टेल? हाँ हाँ। बच्चे साइटोकाइनेसिस तो मतलब समझ रहे हो? साइटोकाइनेसिस मतलब सेल कंप्लीटली डिवाइड कर चुका है, मतलब कि ये सेल ऐसा होता है, ठीक है? तो दिस मीन्स कि सेल इज रेडी टू डिवाइड, सेल का सब कुछ अपने आप नया नया एकदम कंप्लीटली सिंथेसाइज हो चुका है, बस सेल को यहाँ से डिवाइड करना, दैट इज साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे सेंट्रियोल का कोई रोल नहीं है। सेंट्रियोल मीन्स जो स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इफ यू रिमेम्बर, मैंने ऐसा कुछ सेंट्रोसोम बताया था जो 90 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं। These are the centrioles, and this, along with this amorphous material, that is actually known as the centrosome. सेल साइज, सेल ग्रोथ वाले जो सबसे फर्स्ट चैप्टर था इस यूनिट का, जाके देखना उसमें सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो सेंट्रियोल्स कहाँ पे होते हैं? सेंट्रियोल्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली ओनली प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स दे आर नॉट प्रेजेंट, इसीलिए आई हैव रिटन सेंट्रियोल्स दे डिवाइड, सेंट्रियोल्स डिवाइड एंड इट डज ओनली इन द एनिमल सेल्स। ठीक है। अच्छा, ये रेप्लिकेशन वाला तो सभी को पता है कि एस फेज में सबसे मेन चीज क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेन चीज क्या हो रही है इस फेज में? द डीएनए रेप्लिकेशन इज टेकिंग प्लेस, विच मीन्स द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल इज एक्चुअली गेटिंग डबल्ड। ठीक है। एंड और क्या होगा? हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स का क्या होता है? जो हमारे डीएनए होता है, सी इट इज वेरी नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट विच आर प्रेजेंट। ठीक है। तो उन फॉस्फेट की वजह से डीएनए पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एंड DNA को you have to adjust in the nucleus, which is very much smaller in size. So to adjust that very large length DNA in the nucleus, histone proteins क्या करते हैं? उन पे जाके अटैच करते हैं, उनको स्टेबलाइज करते हैं, एंड उनको कॉइल करने में हेल्प करते हैं, so that that DNA can be coiled in the nucleus easily. So the histone proteins, they are also synthesized in this S phase. इसके बाद जो थर्ड फेज है, विच इज द G2 फेज। G2 फेज में देखो क्या होगा? G2 फेज में अगेन प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीजेस। प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअली इंक्रीजेस। व्हाट प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। इफ यू रिमेंबर, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन हमने पढ़ा था कहाँ पे? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इज एक्चुअली अ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन। सो ये बेसिकली किसमें हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन।
ठीक है, इट हेल्प्स इन द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। और क्या करेगा इसमें भी और क्या होगा इसमें भी आरएनए सिंथेसिस होगा। आरएनए सिंथेसिस बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा। इनिशिएट तो ऑलरेडी कहाँ पे हो चुका था, G1 फेज में, इसमें और इंक्रीज हो जाएगा और इसमें भी क्या होगा, एटीपी सिंथेसिस विल आल्सो इंक्रीज। So this is all that is happening in the three phases of the interphase, which is G1 phase, S phase and the G2 phase. ठीक है, so this is what happens. अच्छा हाँ बोलो। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बच्चे एटीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कैसे कन्वर्ट होगा, एटीपी से तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब होगा जब एटीपी में से एक अगर आप फॉस्फेट रिलीज कर रहे हो, एनर्जी यूज कर रहे हो, तो एनर्जी यूज कर रहे हो तो वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू एडीपी प्लस दिस पीआई, तभी तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो रहा है। तो इसमें बेसिकली एटीपी सिंथेसिस हो रहा है। अभी ये एटीपी सिंथेसिस कैसे होगा, इट कैन टेक प्लेस ड्यू टू सेवरल स्टेप्स। इट कैन बी from glycolysis or it can be through the Krebs cycle or it can be through the electron transport chain। ठीक है, यहाँ पे बस इतना याद रखो अभी कि एटीपी सिंथेसिस हो रहा है। अब एटीपी सिंथेसिस करने के लिए इस पे एक पूरा चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर इज देयर, हाउ इज एटीपी बीइंग सिंथेसाइज्ड एंड कहां से कौन से प्रोसेस से हाउ मेनी एटीपीज आर बीइंग सिंथेसाइज्ड, अगेन दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। ठीक है, तो उस चीज को भी यहाँ पे मत मिक्स करो। तो यहाँ पे बस अभी तक याद रखोगी एटीपी सिंथेसिस हो रहा है एंड आरएनए सिंथेसिस आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा बहुत बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारे सेल्स है हार्ट के, हार्ट सेल्स दे डू नॉट डिवाइड। ठीक है, देर आर सम सेल्स, हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, बट वी कैन सी देर आर सम रीजन्स इन आवर बॉडी लाइक द सेल्स ऑफ आवर हार्ट, दे एक्चुअली डू नॉट डिवाइड, और देर आर सम सेल्स विच डिवाइड ओनली ओकेजनली। मतलब कि सपोज बॉडी में कुछ सेल्स हैं वो डैमेज हो गए हैं, उन डैमेज सेल्स को रिप्लेस करने के लिए कुछ नए सेल्स चाहिए। ठीक है, तो वो नए सेल्स कहाँ से आते हैं, वो जो कुछ सेल्स होते हैं वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं एंड देयर अदर एंटर इनटू अ सेपरेट फेज विच इज द जी नॉट फेज। मैंने अगर आपको ध्यान हो सेल साइकिल में आई हैव ड्रॉन जी नॉट फेज मैंने लिखा था रेड पेन से, एंड उसके बाजू में आई हैव रिटन फॉर द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो होता क्या है कि बहुत बार सेल्स दे एक्चुअली स्टॉप डिवाइडिंग एंड दे एंटर इनटू अ क्विसेंट स्टेज। इसको जी नॉट फेज को हम बोलते हैं क्विसेंट फेज, और क्विसेंट फेज और क्या बोलते हैं इसको, इनएक्टिव स्टेज। मतलब सेल डिवाइड तो कर रहा है बट इज अदर मेटाबॉलिकली इट इज इनएक्टिव। ठीक है, सो तो सेल्स अगर सपोज बॉडी में कहीं पे कुछ सेल्स हैं जिनको डैमेज हो जाता है तो एंड वी रिक्वायर एन इमीडिएट रिपेयरमेंट ऑफ दो सेल्स, तो ये जी नॉट फेज के सेल्स दे एग्जिट दिस जी नॉट फेज एंड स्टार्ट डिवाइडिंग फॉर दोज पर्टिकुलरली दो cells। ठीक है, so that is actually the G naught phase. So I'll write it down here that some cells they divide only occasionally as needed to. There are some cells which divide occasionally as needed to replace cells that have been रेड ब्लड सेल्स का तो अपना टाइम है ना 120 डेज, उनका तो अपना पूरा नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिवर के सेल्स हैं, लिवर के सेल्स को अगर सपोज कुछ डैमेज हो जाता है, ठीक है, अगर आपके लिवर को कुछ डैमेज हो जाता है तो बेसिकली आपका लिवर कंप्लीटली पूरा रीजनरेट नहीं कर सकता है। ठीक है, ओनली अ सर्टेन पार्ट ऑफ योर लिवर कैन बी रीजनरेटेड एंड वो कौन सा रीजनरेट होगा, बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर सेल्स। ठीक है, जो एक्टिवेट होंगे इस, और वो हाँ बोलो बोलो। स्टेम सेल्स तो एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। स्टेम सेल्स तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को नया का नया ऑर्गेनिज्म खड़ा कर सकता है, एंड वो स्टेम सेल्स हमारे बॉडी में मतलब जब हम वी आर एक्चुअली बॉर्न, बर्थ के बाद में जो स्टेम सेल्स का नंबर होते हैं वो एक सिर्फ कंफाइंड रीजन्स में रहता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक द बोन मैरो। ठीक है,
बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में द स्टेम सेल्स एक्चुअली क्या होते हैं, अभी तो आजकल ये ट्रेंड भी हो गया है कि वेन एवर अ बेबी इज गोइंग टू बी बॉर्न, सो देन ड्यूरिंग दैट एम्ब्रियोनिक स्टेज के टाइम पे द स्टेम सेल्स दे आर विड्रॉन फ्रॉम द मदर्स बॉडी, ठीक है। तो मदर्स बॉडी से उसको निकाल के उनको प्रिवेंट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, सो दैट in case future में जाके if anything happens to that child, so that child can be cured because of those stem cells, ठीक है। stem cells they are actually totipotent in nature, मतलब कि वो एक complete organism को they can give rise, and if not complete organism at least most of the major body parts, ठीक है। so again this is a costly procedure, but आज के time में it has become a trend, every couple is going for the stem cells preservation, so during that pregnancy period stem cells निकलवा के the couples they actually get them preserved, ठीक है। so G naught phase में क्या हो रहा है कि the some cells they divide occasionally as needed to replace the cells which have been lost because of injury or cell death। अगर सेल सपोज कोई इमीडिएटली डाई, सपोज बॉडी पे कोई पैथोजन अटैक हुआ है, ठीक है, पैथोजन अटैक हुआ है तो उसमें हमारे जो हमारे सेल की बॉडी के जिनको सोल्जर्स बोलते हैं दे आर एक्चुअली द न्यूट्रोफिल्स। कभी भी बॉडी में कोई भी पैथोजन अटैक होता है जो सबसे पहले सेल्स उस डैमेज साइट पे या इंजरी साइट पे जाते हैं दे आर द न्यूट्रोफिल सेल्स, ठीक है। तो सपोज न्यूट्रोफिल सेल्स गए, फिर बाद में मोनोसाइट्स भी जाते हैं, बेसोफिल्स भी जाते हैं, ऑल दी सेल्स दे गो देयर। तो उसमें क्या होता है कि बहुत बार अ लॉट ऑफ डैमेज इज कॉज एंड द सेल्स दे एक्चुअली डाई। सो इमीडिएटली अगर सेल्स को रिपेयर करना है, न्यू सेल्स आर रिक्वायर्ड, तो ये जी नॉट फेज में से द सेल्स दे एग्जिट दिस पर्टिकुलर फेज एंड दे स्टार्ट डिवाइडिंग। सो देयरफॉर आई हैव रिटन the cells that have been lost, why have been they lost, they have been lost because of the injury or cell death, ठीक है। इसीलिए अरे स्टेम सेल्स में क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बेबी डेवलप कर रहा है मदर के वोम में, तो उसमें से इस टाइम पे से स्टेम सेल्स को निकाल लेते हैं, ठीक है। स्टेम सेल्स जो होते हैं दे आर एक्चुअली टोटीपोटेंट इन नेचर। तुम अभी 11th क्लास में, तुम्हारा इतना कॉन्सेप्ट डिटेल में ही नहीं है, अभी इतना समझ के करोगे क्या। स्टेम सेल्स आर देयर, स्टेम सेल्स को यू टेक देम आउट फ्रॉम द मदर्स वॉम, ठीक है, एंड द स्टेम सेल्स दे बीइंग टोटीपोटेंट नेचर। आजकल में क्या हो रहा है कि जो कपल्स हैं टेक्निक्स इतनी आ गई है, देयर हैज बीन सो मच एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी कि क्या करते हैं ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड, तो जो मदर के वॉम से द सेल स्टेम सेल्स दे आर आइसोलेटेड, ठीक है, क्योंकि और किसके स्टेम सेल्स ऑब्वियसली ऑफ द बेबी, तो स्टेम सेल्स को आइसोलेट कर लेते हैं और उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो होता क्या है, सपोज फ्यूचर में जाके उस बेबी को या उस चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम हो जाता है या कोई ऑर्गन डैमेज हो जाता है या कुछ हो जाता है, सो दोज स्टेम सेल्स कैन बी एक्चुअली यूज टू इम्प्लांट दीज इन द इम्प्लांट दीज इन द अगेन द चाइल्ड बॉडी, सो दैट क्या होगा कि अगर वो कंप्लीटली बेबी में भी वो रिपेयर क्या खुद को रिपेयर ना कर पाए, बट एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट तक वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए स्टेम सेल्स बोलते हैं। अब जैसे हमारा लिवर है, लिवर में क्या होता है, लिवर के पास प्लूरीपोटेंसी होती है। प्लूरीपोटेंसी मतलब वो कंप्लीटली रीजनरेट नहीं हो सकता। सपोज हमारा लिवर खराब हो जाता है, ठीक है, मतलब डैमेज हो जाता है, सपोज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अल्कोहल और मे बी ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, सपोज लिवर डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर आप सोचो कि लिवर अपने आप रीजनरेट हो जाएगा बॉडी में, बिकॉज हम बोल रहे हैं हमारी बॉडी में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑन रिक्वायरमेंट दे एग्जिट दिस जी नॉट फेज एंड वो डिवाइड करने लग जाते हैं, बट दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। लिवर के कुछ स्पेसिफिक एरिया के सेल्स ही रीजनरेट हो सकते हैं, एंटायर लिवर कैन नॉट बी रीजनरेटेड। मगर अब जैसे कि आप सोचो कि अभी किसी का लिवर डैमेज हो गया एंड उसका लिवर फिर से एकदम थोड़े दिन में नया हो जाए and the cells एकदम start redividing, regenerating, so that is actually not practically, that is not possible। सिर्फ कुछ एक्सटेंट तक वो डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे मैं जो जी नॉट फेज की मैं बात कर रही हूँ दैट इज ओनली कि वो टेम्पररीली अरेस्टेड होते हैं, मतलब टेम्पररीली डिवाइड करना स्टॉप करते हैं, मतलब कि एज इफ दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अ सिग्नल कि कहीं पे सेल्स को, जैसे बोलते हैं ना बैकअप प्लान, कि सपोज बॉडी को एकदम इंस्टेंट रिक्वायरमेंट चाहिए कि भाई यहाँ पे सेल्स, इस एरिया में सेल्स की डेथ हो गई है बहुत ज्यादा एंड वी रिक्वायर सेल्स इमीडिएटली,
तो ये जी नॉट फेज में क्या करते हैं, सेल्स ऑलरेडी डिवाइडेड होते हैं एंड उनको फिर क्या होता है, बस वो अपनी ग्रोथ को अरेस्ट कर लेते हैं, दे एक्चुअली जस्ट स्टॉप डिवाइडिंग। डिवाइड करना स्टॉप क्यों कर देते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, कि मतलब अभी चलो उस एरिया में देयर हैज बीन अ रिक्वायरमेंट एंड दैट एरिया रिक्वायर्स more number of cells immediately. So G naught phase से the cells exit that phase and reach to that particular site. G naught phase का और कोई भी function नहीं है, ठीक है। तो इसमें the cells they remain active in the stage but no longer proliferate. So इसमें the cells remain active in this stage but no longer proliferate unless called on to do so. मतलब जब तक रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो these cells will not divide, ठीक है। So इसलिए this G naught phase is also called as the inactive phase or the quiescent phase. And जो inactive मैं बोल रही हूँ, inactive मैं बोल रही हूँ in terms of division, मतलब सेल ने टेम्पररीली डिवाइड करना बंद किया है, बट एज सुन एज द सेल एग्जिट्स दिस पर्टिकुलर जी नॉट फेज इट विल इमीडिएटली स्टार्ट डिवाइडिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है सी वैल्यू का। देखो सी वैल्यू देखो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, ये सबसे पहले हम डिप्लॉयड इंडिविजुअल हैं, सो वी हैव 2n एंड 2c, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द G1 फेज। अच्छा, सी वैल्यू को अगर आपको डिफाइन करना है तो व्हाट इज एक्चुअली सी वैल्यू, इट इज द डीएनए कंटेंट ऑन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए कंटेंट ऑन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब n, वी आर डिप्लॉयड तो हमारे पास दो सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। सो एक सेट पे हाउ मच डीएनए इज प्रेजेंट, दैट इज एक्चुअली द सी वैल्यू। एंड इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट इज पिकोग्राम, ठीक है। जैसे मिलीग्राम होता है वैसे ही पिकोग्राम होता है, ठीक है। सो हम वी आर द डिप्लॉयड इंडिविजुअल, सो वी हैव 2n एंड 2c। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम बिफोर G1, ठीक है। पहले लिखते हैं बिफोर G1, मतलब अभी तक सेल ने रेप्लिकेट नहीं किया है, ठीक है। सो बिफोर G1 हमारा क्रोमोसोम नंबर कितना है, इट इज एक्चुअली 2n, ठीक है। एंड हमारी सी वैल्यू कितनी है, 2c, ठीक है। 2c क्यों है, बात समझ में आ रही है। हमारे पास दो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, वी हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। 23 पेयर्स आर देयर, सो एक सेट पे देयर इज c एंड अदर सेट पे भी c, सो दैट इज टोटल सी वैल्यू हमारा कितना हो गया, दैट इज 2c, ठीक है। एंड क्रोमोसोम नंबर तो आपको पता ही है 2c होता है। सो एट द एंड ऑफ G1 क्या होगा, एट द एंड ऑफ G1 एट द एंड ऑफ G1 भी पता है सेल ने अभी तक रेप्लिकेट नहीं किया है, तो मतलब कि गोइंग टू बी सिक्स, क्रोमोसोम नंबर भी कितना होगा 2n एंड सी वैल्यू भी कितना होगा 2c, ठीक है। G1 के बाद हम आ गए कहां पे, एट द एंड ऑफ S, एट द एंड ऑफ S। अब हमको पता है एस फेज में, मैंने जब अभी लिखा था एस फेज में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल इट एक्चुअली डबल्स, ठीक है। तो जब डीएनए डबल कर गया तो क्या हो गया, पर क्रोमोसोम्स उतने ही हैं,